Dear students, welcome to my English literature class of grade 4th. Students, this is your first AV assignment for first terminal. Let's begin. Come to the page number 11, poem, that is another note from mom. Students, first of all, I will recite you this wonderful poem. Then I will explain you according to the stanza wise in a detailed form. Let's begin. Come to the first extract. I sprang from bed and bumped my head and stubbed my little toe, then jammed my fingers, turning down the blaring radio. I rubbed my bumps and bruises as the weather lady said, "Today's the 1st of April, look for showers overhead." I touched downstairs to breakfast, where my bad luck tagged along. There, tapped up to the microwave, another note from mom. "Good morning!" exclamation mark. She always starts out nice. Now comes the part where I get fed by her motherly advice. "For breakfast, dear, just help yourself. There is pizza in the fridge. As for your soda, choose the Sprite. The Coke has lost its face. Is this a dream?" I said out loud. There must be some mistake. I had better read that through again. I am only half awake. I scanned the lines, not once but twice. Yes, pizzas, what it said, and I could swallow that advice, so I read on ahead. "Please wear your faded jeans to school, those low-cut ones that flare, and use that mousse to do that sticky up things with your hair." Is she for real? I asked myself. What's gotten into mom? Whatever it was, I liked it lots. So I continued on. "About your science quiz today, the one on natural gas, just tell your teacher that's one subject you don't want to pass." Her rules had changed from lame to lax. My mom was cool at last. These last few days of middle school were going to be a blast. I quickly read the last few lines. "Enjoy your day at school and don't believe what you have just read, or you are an April fool." So students, I have recited you this poem. Now I will explain you according to the stanza wise. Come to the first stanza. Students, first of all, I will give you the summary of regarding this poem. Students, this poem is written by Diane Z. Shore. This poem is about a little boy who wakes up in the morning and finds a note from his mother. In the note, the little boy reads his mom's directions for how to get through his morning without her. So students, this poem is all about the little boy जो अपनी मदर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जो उसकी मदर उसको नोट्स के द्वारा उसको प्रोवाइड करती है इंस्ट्रक्शंस. तो वो जो इंस्ट्रक्शंस है, वो जो लिटिल बॉय है वो मॉर्निंग में उसको फॉलो करता है. नाउ कम टू द फर्स्ट स्टैंजा. "I sprang from bed and bumped my head and stubbed my little toe." स्टूडेंट्स, sprang क्या होता है? क्विकली से जंप करना. sprang मीन्स क्विकली जंप्ड. वो कहता, जो लिटिल बॉय है वो कहता कि जब मैंने क्विकली जंप किया बेड से, जो मेरा हेड था वो लगा, मतलब बम्प कर गया. एंड स्टब्ड माई लिटिल टो, और जो उसका टो है वो भी हिट हो गया किसी चीज़ के साथ. देन जैम्ड माई फिंगर्स टर्निंग डाउन द ब्लेरिंग रेडियो. ब्लेरिंग का मतलब क्या होता है? बहुत लाउड वॉइस से जो रेडियो था वो चल रहा था,
ब्लेरिंग मीन्स लाउड वॉइस। और जो वो लिटिल बॉय था उसने अपनी फिंगर्स के साथ उसको थोड़ा स्लो किया। आई रब्ड माई बम्स एंड ब्रूसेस एज द वेदर लेडी सैड। वेदर लेडी मीन्स यूजली हु फॉरकास्ट द वेदर, जो वेदर को फॉरकास्ट करती है, वेदर की न्यूज़ प्रोवाइड करती है लोगों को, उसको क्या कहते हैं, वेदर लेडी। तो उसने जो बॉय था, लिटिल बॉय था, उसने अपने जो उसके चोट लगी थी उसको क्या किया, उसको रब करना स्टार्ट कर दिया। ब्रूसिस का मतलब क्या होता है, चोट के निशान पड़ जाना। तो उसने उसको रब करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो वेदर लेडी रिपोर्ट को फॉरकास्ट कर रही थी, रिपोर्ट को बता रही थी, टुडे इज द 1st of April, लुक फॉर शॉवर्स ओवरहेड। आज क्या है, 1 अप्रैल है, आज शावर हो सकता है, आज के दिन रेन फॉल हो सकती है। तो उस वेदर लेडी ने क्या बोला कि आज 1 अप्रैल है, आज 1 अप्रैल के दिन बारिश हो सकती है, रेनफॉल हो सकती है। नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा। आई टर्च्ड डाउन स्टेयर्स टू ब्रेकफास्ट वेयर माई बैड लक टैग्ड अलोंग। टर्च्ड का मतलब होता है धीरे धीरे से चलना, स्लोली स्लोली वॉक करना। जो वो बॉय था वो डाउनस्टेयर की तरफ स्लोली स्लोली अपने ब्रेकफास्ट के लिए आ रहा था। और जो वेयर माई बैड लक टैग्ड अलोंग, और जहाँ पे उसका जो बैड लक था वो उसके साथ टैग हुआ था। टैग का मतलब क्या होता है, केम अलोंग। जैसे वो ब्रेकफास्ट की तरफ धीरे धीरे आ रहा था, उसका जो बैड लक था वो भी उसके साथ आ रहा था। देयर टैप्ड अप द माइक्रोवेव, देयर टैप्ड अप टू द माइक्रोवेव अनदर नोट फ्रॉम मॉम। उसमें क्या था, एक नोट था जिसमें उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, जिसमें उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी उसकी मदर ने, जो उसको फॉलो करनी थी। गुड मॉर्निंग एक्सक्लेमेशन मार्क, शी ऑलवेज स्टार्ट्स आउट नाइस। जो उसकी मदर थी वो जो मॉर्निंग की शुरुआत थी वो गुड मॉर्निंग से करती थी और वो बहुत नाइसली स्टार्ट करती थी। नाउ कम्स द पार्ट वेयर आई गेट फेड बाय हर मदरली एडवाइस। अब ये वो टाइम था जब उसकी मदर की जो एडवाइस थी उसको फॉलो करनी थी उस लिटिल बॉय को। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा। फॉर ब्रेकफास्ट डियर जस्ट हेल्प योर सेल्फ, देयर इज़ पिज़्ज़ा इन द फ्रिज। उसकी मदर ने उसको लिटिल बॉय को बोला कि तुम्हारे ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हें खुद ही हेल्प करनी है, फ्रिज के बीच में पिज़्ज़ा पड़ा है। एंड एज फॉर योर सोडा, सोडा के लिए तुम स्प्राइट चूज़ करना, चूज़ द स्प्राइट, द कोक हैज़ लॉस्ट इट्स फीस। सोडा के लिए तुमने स्प्राइट को चूज़ करना क्योंकि जो कोक है उसने अपने फिज़ को लॉस्ट कर दिया। फिज़ मीन्स बबल्स, जो उसकी गैस है उसमें बबल्स है वो ख़त्म हो चुके। तो तुम्हें स्प्राइट को चूज़ करना है और फ्रिज में से पिज़्ज़ा को भी लेना है। इज़ दिस अ ड्रीम? तो वो जो लिटिल बॉय था वो सोचने लग गया। सी इन दिस पिक्चर दिस लिटिल बॉय ये सोच में पड़ गया कि क्या ये ड्रीम है कि मेरी मदर मेरे को बोल रही है कि पिज़्ज़ा फ्रिज में पड़ा है और तुम स्प्राइट को चूज़ कर लो। क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें उनके बच्चे खाएं क्योंकि दीज आर नॉट गुड फॉर दी हेल्थ। पिज़्ज़ा हो गया, स्प्राइट हो गया। तो वो जो लिटिल बॉय था वो शॉक्ड हो गया, उसको लगा कि ये कोई सपना तो नहीं है, कोई ड्रीम तो नहीं है कि मेरी मदर मेरे को बोल रही है कि तुम फ्रिज में से पिज़्ज़ा ले लो और स्प्राइट ले लो। इज़ दिस अ ड्रीम? आई सैड आउट लाउड, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। तो उसको लगा कि ये कोई ड्रीम है, उसने लाउडली बोला कि क्या ये कोई गलती है, कोई मिस्टेक हो गई है मेरे को सुनने में। आई हैड बेटर रेड दैट थ्रो अगेन। तो मैंने उस जो मेरी मदर ने मेरे को नोट प्रोवाइड किया था जिसमें इंस्ट्रक्शंस थी उसको उसने लिटिल बॉय ने दोबारा रीड किया। आई एम ओनली हाफ अवेक, शायद मैं अभी सोया हुआ हूँ, पूरी तरह से जागा नहीं हूँ। नाउ कम टू द फोर्थ स्टैंजा। आई स्कैन द लाइन्स नॉट वंस बट ट्वाइस, येस पिज़्ज़ास व्हाट इट सेड। तो उसने जो लाइन्स थी
जो नोट में लिखी हुई थी उनको दोबारा उसको देखा, पढ़ा, स्कैन किया। यस, पिज़्ज़ा इज व्हाट इट सेड, उसमें वो ही लिखा था पिज़्ज़ा। एंड आई कुड swallow दैट एडवाइस सो आई read on ahead. एंड आई कुड swallow दैट एडवाइस सो आई read on ahead. तो उसको मतलब ये जो एडवाइस थी उसने बड़ी मुश्किल से बियर की। प्लीज वेयर योर फेवरेट जीन्स टू स्कूल, दोज लो कट ones दैट फ्लेयर। तो उसकी मदर ने उसको बोला कि तुम फेवरेट जीन्स को वेयर करो स्कूल के लिए। फेवरेट जीन्स कौन सी होती है, जो नीचे ऊपर से टाइट होती है, नीचे से वो ओपन सी होती है, मतलब उसकी फ्लेयर होती है। तो उसकी मदर ने बोला कि तुमने स्कूल के लिए वो वाली जो फेवरेट जीन्स है उसको वेयर करना है। एंड यूज दैट मोजे टू डू दैट स्टिकी अप थिंग्स विद योर हेयर। और अपने हेयर्स को अच्छे से उसको जो उसके हेयर्स हैं, उसकी मदर ने बोला कि तुम बालों में क्रीम लगा लेना। मोज़ी का मतलब होता है, एक क्रीम होती है वाइट कलर की जो हेयर्स को के लिए यूज़ की जाती हैं, हेयर स्टाइल्स को बनाने के लिए। तो तुम वो क्रीम को अप्लाई कर लेना और अच्छे से हेयर स्टाइल को, अच्छा सा हेयर स्टाइल बना के जाना। नाउ कम टू दी फिफ्थ स्टैंजा, इज शी फॉर रियल, आई आस्क्ड माई सेल्फ। तो उसने लिटिल बॉय ने पूछा कि क्या ये रियल है, जो उसकी मदर ने बोला कि तुम फेडेड जीन्स पा के जाना और मोज़े यूज़ करना, क्रीम अप्लाई करना बालों के लिए, अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाने के लिए। व्हाट गॉटन इनटू मॉम, व्हाट्स गॉटन इनटू मॉम, मॉम को क्या हो गया। वट एवर इट वॉज, जो भी था, आई लाइक्ड इट लॉट्स सो आई कंटिन्यूड ऑन। जो भी था मैं उसको लाइक कर रहा था, मुझे पसंद था और मैंने उसको कंटिन्यू किया। अबाउट योर साइंस क्विज टुडे, द वन ऑन नेचुरल गैस। जो तुम्हारा साइंस क्विज था वो आज, जो आज साइंस क्विज था नेचुरल गैस के ऊपर, जस्ट टेल योर टीचर दैट्स वन सब्जेक्ट यू डोंट वांट टू पास। तो अपने टीचर को बता देना कि ये वो सब्जेक्ट है जिसको तुम पास नहीं करना चाहते। Now come to the last stanza. Her rules had changed from lame to lax. Lame का मतलब क्या होता है, strict. Lax means easy. जो रूल्स थे वो लेम से लेक्स हो गए, लेम टू लेक्स हो गए, मतलब स्ट्रिक्ट से इजी हो गए। माई मॉम वॉज कूल एट लास्ट, जो मेरी मदर थी वो बहुत कूल हो गई थी। दीज लास्ट फ्यू डेज ऑफ मिडल स्कूल वर गोइंग टू बी अ ब्लास्ट। ये जो मेरे लास्ट डेज है मिडल स्कूल में, ये बहुत अच्छे होने वाले हैं। आई क्विकली रेड दी लास्ट फ्यू लाइन्स, एंजॉय योर डे एट स्कूल। जो लास्ट लाइन्स थी उसने बहुत क्विकली रेड की, जो लिटिल बॉय था, और उसमें क्या लिखा हुआ था, एंजॉय योर लास्ट डे एट स्कूल एंड डोंट बिलीव व्हाट यू हैव जस्ट रेड। उस पर बिलीव मत करना कि क्या जो आप तुमने रीड किया है, जो तुमने रेड किया है, और यू आर एन अप्रैल फूल, नहीं तो तुम क्या बन जाओगे, अप्रैल। तो जो उसकी मदर थी वो वैसे ही लेम थी जैसे पहले थी, जैसे वो पहले स्ट्रिक्ट थी वो वैसे ही थी, और उसने कोई भी रूल्स को चेंज नहीं किया था। तो जब उसने लिटिल बॉय ने ये लास्ट लाइन को रेड किया तो उसको पता चल गया था इसको इन लास्ट टू लाइन्स को पढ़ के। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड this poem. See you in the next video. Have a nice day.